Hello everyone, this is today's the Hindu newspaper analysis session for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to environmental laws and policy in India, all important environmental global summits. Second issue is related to net grid. Third issue is related to India's antimicrobial resistance AMR battle. Fourth issue is related to Election Commission of India. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about environmental laws and policy in India. We will also discuss all important environmental summits in world. इंडिया की इन्वायरमेंटल एक्ट। इंडिया में की इन्वायरमेंटल एक्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर वन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नंबर टू, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। नंबर थ्री, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। नंबर फोर, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। नंबर फाइव, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नंबर सिक्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। नंबर सेवन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। नंबर एट, कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। Number of Wildlife Protection Act 1972 provided for the protection of wild animals, birds, and plants. It established national parks, sanctuaries, and conservation community reserve. Wildlife Protection Act 1972 इंडिया में वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग ही इंडिया में नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन रिजर्व इस्टेब्लिश किए गए हैं। The 2022 amendment rationalized its schedule for 6 to 4 and implemented sites provisions. 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। इसके अंदर ओवरऑल शेड्यूल पहले 6 हुआ करते थे, बट अब 4 कर दिया गया है। साइट्स के प्रोविजन को भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। Number of Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, which is also known as Water Prevention and Water Pollution Act 1974, established the Central and State Pollution Control Board. वाटर एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग ही सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेब्लिश किए गए हैं। A 2024 amendment decriminalized minor violations, replacing imprisonment with monetary penalties. Number three, Forest Conservation Act 1980 require prior central government approval for the diversion of forest land and non-forest purpose. Forest Act 1980 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्जन करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल टेकिंग करना होगा। इट मीन्स कोई भी फॉरेस्ट लैंड है, अगर उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए यूज करना है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन पहले टेकिंग करना होगा। नंबर फोर, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, which is known as Air Act, regulate air quality and includes noise pollution. Air Act 1981 एयर क्वालिटी को रेगुलेट करता है। नॉइज पॉल्यूशन को भी इसके अंदर 1987 में ऐड किया गया था। नंबर फाइव, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, known as the Umbrella Act. It empowers the center to coordinate actions and set standard for all environmental pollutions. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शंस टेकिंग करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। इट वाज इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253 फॉलोइंग द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग इसको इनेक्ट किया गया। स्पेशली 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोविजन किया गया। नंबर सिक्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 implement the CBD Convention on Biological Diversity and Nagoya Protocol to regulate access to biological resources and ensure fair benefit sharing. It features a three-tier structure: National Biodiversity Authority at the national level, State Biodiversity Board at the state level, and Biodiversity Management Committee at the local level, all working to regulate access to biological resource, promote conservation. Number seven, National Green Tribunal Act 2010 established a specialized tribunal for the fast-track disposal of environmental cases.
एनवायरमेंटल केसेस के फास्ट ट्रैक डिस्पोजल के लिए इंडिया में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया। इट हैज jurisdiction over 7 acts but exclude the Wildlife Protection Act and Forest Right Act। एनजीटी का 7 एक्ट्स पर jurisdiction है, बट वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट पर इसका jurisdiction नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 1980 पर इसका jurisdiction नहीं है। नंबर 8 कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 मैनेज फंड कलेक्टेड फ्रॉम यूजर एजेंसीज फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड को अगर डाइवर्ट किया जाता है, देन यूजर एजेंसीज के द्वारा जो भी फंड गिवन किया जाता है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 उस फंड को मैनेज करता है। 90% जो फंड होगा वो स्टेट का होगा, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। मेजर एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया, इससे पहले हमने एनवायरमेंटल एक्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज हैं इंडिया के अंदर, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नंबर 2 नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006। नंबर 3 नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 2031। नंबर 4 नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। Number of National Forest Policy 1988 aims to maintain 33% of India's land area under forest and tree cover। National Forest Policy 1988 के अकॉर्डिंग इंडिया लैंड एरिया के अंडर 33% फॉरेस्ट और ट्री कवर होना चाहिए। हिली रीजन में 66% होना चाहिए। Number of National Environment Policy 2006, a comprehensive policy based on the right to a healthy environment, emphasizing the polluter pay and precautionary principles। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट अंडर आर्टिकल 21 के बेस पर है। नंबर 3 नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 2031, the third such plan focusing on a landscape based conservation and climate change impact on wildlife। Number 4 national action plan on climate change consists of 8 missions including the national solar mission and green India mission। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर 8 मिशंस को कंसिस्ट किया गया है। इसी के अंदर नेशनल सोलर मिशन एंड ग्रीन इंडिया मिशन को इंक्लूड किया गया है। कि रेगुलेटरी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया, इंडिया में एनवायरनमेंट से रिलेटेड रेगुलेटरी रूल्स क्या है। इससे पहले हमने एनवायरमेंटल एक्ट्स, एनवायरमेंटल पॉलिसी, अब हम रेगुलेटरी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। नंबर 2 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। नंबर 3 कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018। नंबर 4 वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। नंबर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 replace the 2016 rules, introducing a trading system for EPR certificate, extended producer responsibility certificate, and expanding the scope to 106 categories of electrical and electronic equipment। Number 2 plastic waste management rule 2016 phase out identical single use plastic and mandate EPR for plastic packaging। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग ही इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक को आइडेंटिफाई किया गया, बैन किया गया। नंबर 3 कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 बेस्ड ऑन द सैलिस नायक कमेटी, इट क्लासिफाई कोस्टल एरियाज इनटू 4 जोन टू रेगुलेट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। कोस्टल एरियाज में डेवलपमेंटल एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए कोस्टल रेगुलेशन नोटिफिकेशन 2018 के अकॉर्डिंग कोस्टल एरियाज को 4 जोन में डिवाइड किया गया, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। नंबर 4 वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 डिसेंट्रलाइज वेटलैंड मैनेजमेंट टू स्टेट एंड प्रोहिबिटेड एक्टिविटी लाइक वेस्ट डंपिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन नोटिफाइड वेटलैंड। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग वेटलैंड मैनेजमेंट को स्टेट के लिए डिसेंट्रलाइज किया गया एंड
वेटलैंड नोटिफाइड वेटलैंड के अंडर वेस्ट डंपिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया। मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्वेंशंस एंड इंडिया रोल। ग्लोबली एनवायरमेंटल कॉन्वेंशंस एंड समिट्स कंडक्ट किए गए हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स में इंडिया का क्या रोल रहा है। इंडिया is a part of most major global environmental agreement and has hosted several key conference। इंडिया मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स का पार्ट रहा है। कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस कौन कौन से हुए। पॉल्यूशन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स कौन कौन सा हुआ। कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। नंबर वन, यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी 1992। नंबर टू, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। नंबर थ्री, पेरिस एग्रीमेंट 2015। नंबर फोर, कॉप 26। नंबर वन, यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। India ratified it in 1992. It is the parent treaty for subsequent climate agreement. The annual conference of parties meetings are crucial under this convention। यूएनएफसीसीसी को इंडिया ने 1992 में रेटिफाइड किया। ये सभी क्लाइमेट एग्रीमेंट की एक पेरेंट ट्रीटी रही है। जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कंडक्ट की जाती हैं वो यूएनएफसीसी के बेस पर ही कंडक्ट की जाती हैं। इट मीन्स यूएनएफसीसी सभी ट्रीटीज का एक पेरेंट ट्रीटी रही है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 set a legally binding emission target for developed nations। India, as a developing nation, had no binding target but participated actively in clean development mechanism। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंडर कंडक्ट किया गया था। डेवलप्ड नेशंस के लिए यहाँ पर लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट सेट किए गए। बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया को बाइंडिंग टारगेट सेट करने की यहाँ पर नीड नहीं हुई, बट क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए एक्टिवली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। पेरिस एग्रीमेंट 2015 aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius। India ratified the agreement in 2016 and submitted nationally determined contributions NDCs। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था और इसका मेन एम ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो रखने का एम किया गया। 2016 में इंडिया ने इसको रेटिफाइड किया और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया ने सबमिट किए। कॉप 26 ग्लासगो समिट 2021। इंडिया प्लेज अ 5 पॉइंट पंचमृत एक्शन प्लान एंड गोल टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। कॉप 26 2021 में ग्लासगो में हुआ था। इंडिया ने इस समिट के ड्यूरिंग पंच अमृत एक्शन प्लान 5 पॉइंट पंच अमृत एक्शन प्लान यहाँ पर प्लीज किया। साथ ही 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के लिए गोल सेट किया गया। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किए गए ग्लोबली। कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 सीबीटी सीबीडी। रामसर कॉन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1997। बोन कॉन्वेंशन 1979। साइट्स 1973। कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 focus on conservation, sustainable use, and equitable sharing of genetic resources। India biological diversity 2002 reflect its CBD commitment। India hosted CBD COP 11 in Hyderabad in 2012। कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 जिसका मेन फोकस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस रहा है। इंडिया ने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पास किया जो कि सीबीडी के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया ने सीबीडी कॉप 11 2012 में हैदराबाद में होस्ट किया था।
Ramsar Convention on Wetland 1971. India joined 1982 to conserve and sustainably use wetland and has 96 Ramsar sites. इंडिया ने 1982 में रामसार को ज्वाइन किया था सो दैट इंडिया के वेटलैंड को कंजर्व किया जा सके। प्रेजेंट में 96 रामसार साइट्स इंडिया के अंदर हैं। बोन कॉन्वेंशन CMS 1979 India a party since 1983 worked toward conserving migratory species and hosted COP13 in Gandhinagar in 2020। बोन कॉन्वेंशन 1979 में कंडक्ट किया गया था सो दैट माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके। COP13 इंडिया ने 2020 में गांधीनगर में होस्ट किया था। Sites 1973 India joined in 1976 to regulate the international trade of endangered species। endangered species के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए 1976 में इंडिया ने साइट्स को ज्वाइन किया। साइट्स मींस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट पॉल्यूशन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस एंड समिट। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्लोबली कुछ कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स हुए हैं सच एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, बासेल कॉन्वेंशन 1989, स्टॉकहोम कॉन्वेंशन 2001, मिनामादा कॉन्वेंशन 2013। नंबर ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इंडिया implemented the ozone depleting substance rule 2000 to phase out ODS। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने के लिए 2000 में इंडिया ने ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस रूल 2000 इम्प्लीमेंट किया। बासेल कॉन्वेंशन 1989 इंडिया कंट्रोल द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड हैज बैंड ई वेस्ट इंपोर्ट। स्टॉकहोम कॉन्वेंशन 2001 इंडिया हैज बैंड सेवरल POPs टू एलिमिनेट और रेस्टोर दीज persistent pollutant। Minamata Convention 2013 India ratified this convention in 2018 to protect against mercury। Several initiatives taken by Indian government to address climate। क्लाइमेट को एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस इनिशिएटिव्स क्या क्या टेकिंग किए गए हैं। नंबर 1 नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। नंबर 2 स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC। नंबर 3 क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क। नंबर 4 इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नंबर 5 गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2017। नंबर 6 एनहांस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नंबर 7 significant growth in renewable energy capacity। नंबर 8 इंडियन एमिशन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। नंबर 9 coalition for disaster resilience infrastructure। नंबर 10 ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अंडर G20 प्रेसिडेंसी। नंबर 1 नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। Launched in 2008, the NAPCC identified 8 national missions to promote understanding of climate change, adaptation and mitigation, energy efficiency and natural resource conservation। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन को इंश्योर करने के लिए 2008 में इंडिया ने NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया। नंबर 2 स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अंडर द स्टेट एक्शन प्लान ऑन SAPCC, स्टेट आर रिक्वायर्ड टू डेवलप देयर ओन एक्शन प्लान। SAPCC के अंडर स्टेट अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। As of 2022, 33 states and union territories have prepared their SAPCC. However, the implementation and monitoring of these plans remain a challenge। 2022 तक इंडिया के और 33 स्टेट एंड यूटीज ने अपने SAPCC यहाँ पर प्रिपेयर किए, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। Number 3 climate change research and knowledge network। The government has supported various research initiatives and a knowledge network to enhance understanding of climate change impacts and responses। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एंड रिस्पॉन्सेज को अंडरस्टैंड करने के लिए या अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा
वेरियस रिसर्च इनिशिएटिव्स एंड नॉलेज नेटवर्क यहाँ पर टेकिंग किए गए हैं। दीज इंक्लूड नेशनल नेटवर्क प्रोग्राम्स ऑन क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग, एरोसोल एंड कोस्टल वल्नरेबिलिटी। Number 4, International Solar Alliance. It promotes the widespread adoption of solar energy, enhancing global cooperation in renewable energy. इंटरनेशनल सोलर अलायंस सोलर एनर्जी के वाइड स्पीड एडॉप्शन को प्रमोट करता है, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट अलायंस है। नंबर 5, गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070। India's commitment to achieve net zero emission by 2070 mark a significant step toward absolute emission reduction. Absolute emission reduction को इंश्योर करने के लिए इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के लिए कमिटमेंट सेट किए हैं। नंबर 6, एनहांस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDCs), setting ambitious target for reducing emission intensity and increasing renewable energy capacity. नंबर 7, सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में सिग्निफिकेंट ग्रोथ किया है। रैपिड एक्सपेंशन इन सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज इंटरनेशनल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट। इंडिया ने सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन में रैपिड एक्सपेंशन किया है। यही वजह है कि इंडिया के जो भी इंटरनेशनल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट्स थे उन उनमें इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। नंबर 8, इंडियन एमिशन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, establishing a carbon trading scheme to incentivize emission reductions and support sustainable economic growth. Number 9, coalition for disaster resilient infrastructure. डिजास्टर इंफ्रा डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने अदर कंट्रीज के साथ कोalition किया है। फोकस ऑन बिल्डिंग रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू विदस्टैंड क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स से विदस्टैंड करने के लिए इंडिया ने रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर फोकस किया है। नंबर 10, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अंडर G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी के ड्यूरिंग ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट साइन किए थे, इंटीग्रेटिंग ग्रीन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स इनटू ग्लोबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, शोकासिंग इंडिया लीडरशिप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाउ इंडिया कैन एनहांस इट्स ग्लोबल नेगोशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में इंडिया ग्लोबल नेगोशिएशंस को किस तरह से एनहांस कर सकता है। नंबर, होस्टिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। नंबर 2, एडवोकेसी एंड consensus बिल्डिंग। नंबर 3, promoting equity and climate finance. Number, hosting international climate summits. India should aim to host a major international climate summit like the United Nations Conference of Parties in 2028. इंडिया को 2028 में मेजर इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट लाइक यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होस्ट करना चाहिए। This would provide a platform to showcase its climate leadership and set ambitious global climate agendas. इस तरह के अगर समिट्स इंडिया में कंडक्ट किए जाएंगे, ये प्लेटफॉर्म इंडिया को अपने क्लाइमेट लीडरशिप को शोकास करने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर वर्क कर सकते हैं। साथ ही एम्बिशियस ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडाज को यहाँ पर सेट किया जा सकता है। Number of advocacy and consensus building. India should start to build a consensus on critical climate issues. क्रिटिकल क्लाइमेट इश्यूज जिन पर कॉन्सेंसस बिल्ड नहीं हो पाता है, इंडिया को कॉन्सेंसस बिल्ड करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा। प्रोएक्टिवली एंगेजिंग इन डायलॉग, फॉर्मिंग अलायंस एंड एड्रेसिंग कंसर्न ऑफ अदर नेशंस विल हेल्प इंडिया लीड नेगोशिएशंस एंड ड्राइव मीनिंगफुल आउटकम्स। इंडिया को डायलॉग्स में प्रोएक्टिवली एंगेज करना होगा, अलायंस फॉर्म करने होंगे एंड अदर नेशंस की जो एनवायरमेंटल कंसर्न है उसको एड्रेस करना होगा। नंबर 3, प्रमोटिंग इक्विटी एंड क्लाइमेट फाइनेंस। इंडिया शुड एम्फसाइज इक्विटी एंड क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस इन इंटरनेशनल फोरम्स। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस में इंडिया को इक्विटी पर एम्फसाइज करना होगा। इट मीन्स इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस के रेस्पेक्ट में इक्विटी को एम्फसाइज करने के लिए फोकस करना चाहिए।
advocating for fair treatment of developing countries and pushing for enhanced climate finance mechanism will strengthen India's position as a leader of a global south. Issue of fossil CO2 emissions. Fossil CO2 emissions से related क्या issue है? Global fossil CO2 emissions increasing year by year. In 2024, global CO2 emissions were increased by 0.8% compared with 2023. In 2023, it was rise by 1.2% compared with 2022. फॉजिल CO2 एमिशंस ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। 2024 में ग्लोबल CO2 एमिशंस जो रहे हैं वो 2023 के कंपेयर में 0.8% इंक्रीज हुआ है। 2023 में ये 1.2% इंक्रीज हुआ। इन 2023 द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस वर चाइना 31%, यूएस 13%, इंडिया 8% एंड यूरोपियन यूनियन 27%। 2023 में एब्सोल्यूट फॉजिल CO2 एमिशंस में जो कंट्रीज का रोल रहा है वो चाइना का सबसे ज़्यादा रहा है। 31% चाइना ने फॉजिल CO2 एमिट किया। यूएस 13%, इंडिया थर्ड नंबर पर 8%, यूरोपियन यूनियन 7%। These four regions account for 59% of global fossil CO2 emissions, while the rest of the world contributed 41%. चाइना, यूएस, इंडिया, यूरोपियन यूनियन इन चार रीजन से ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस 59% हुआ, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने ओनली 41% फॉजिल CO2 एमिट किया है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉजिल CO2 एमिशंस। हम देख सकते हैं कि चाइना टॉप पर है, यूएस सेकंड नंबर पर है, इंडिया थर्ड नंबर पर है। ग्लोबल पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशन पर कैपिटा के हिसाब से इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। द ग्लोबल पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस इन 2023 1.3 टन ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर। ग्लोबली पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस जो रहा है वो 1.3 टन कार्बन पर पर्सन पर ईयर रहा है। इट मीन्स एवरी पर्सन ने पर ईयर 1.3 टन फॉजिल CO2 एमिट किया है। पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस कंट्री वाइज अगर देखें तो 3.9 टन पर पर्सन पर ईयर यूएस का रहा है, 2.3 टन पर पर्सन पर ईयर चाइना का रहा है, 1.5 यूरोपियन यूनियन का रहा है, इंडिया का 0.6 टन पर पर्सन पर ईयर रहा है। हम देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट फॉजिल CO2 एमिशन के रिस्पेक्ट में चाइना टॉप पर था, जबकि यहाँ एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में यूएस टॉप पर है, चाइना सेकंड पर आ गया। इंडिया थर्ड नंबर पे था, यहाँ पर इंडिया फोर्थ नंबर पर है। व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पेरिस एग्रीमेंट था, बट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। A legally binding global agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change। पेरिस एग्रीमेंट जो कंडक्ट किया गया था ये लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट था, जो कि UNFCCC के अंडर कंडक्ट किया गया था। एडोप्टेड इन 2015 ड्यूरिंग UNFCCC COP21। UNFCCC COP21 के ड्यूरिंग 2015 में इसको एडॉप्ट किया गया था। It aims to combat climate change and limit global warming to below 2 degrees Celsius above the pre-industrial level, with an ambition to limit warming to 1.5 degrees Celsius. Replace Kyoto Protocol. Paris Agreement replaced the Kyoto Protocol, which was an earlier agreement to deal with climate change. पेरिस एग्रीमेंट ने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए अर्लियर एग्रीमेंट था। सेट आउट अ फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कंट्रीज के द्वारा फ्रेमवर्क को यहाँ पर सेट आउट किया गया। पेरिस एग्रीमेंट 2015 सेट आउट अ फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज टू वर्क टुगेदर टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, adapt to impact of climate change and provide support to developing nations in their efforts to address climate change। पेरिस एग्रीमेंट सभी कंट्रीज को एक
फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है सो दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को अडॉप्ट किया जा सके, एंड डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए उनके जो भी एफर्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। एनडीसी एज पर पेरिस एग्रीमेंट, each country is required to submit and update their NDCs in every 5 years, outlining their plan for reducing greenhouse gas emissions and adapting to climate change। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ही एनडीसी का कंसेप्ट आया। एनडीसी मीन्स बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग, यहाँ पर टारगेट सेट किए जाते हैं। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अकॉर्डिंग ईच कंट्री को एवरी 5 ईयर में अपने एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को सबमिट करना होता, अपडेट करना होता। और इन एनडीसीज के अंदर जो भी टारगेट सेट किए जाते हैं वो स्पेशली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने से रिलेटेड टारगेट, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन से रिलेटेड क्लाइमेट टारगेट इसके अंदर सेट होने चाहिए। NDCs are pledges made by all countries to reduce their greenhouse gas emissions and to adapt to the impact of climate change। NDCs all countries के द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से एडेप्ट करने के लिए किए गए कुछ प्लीज होते हैं इसके अंदर। व्हाट इज एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी, EHRA? EHRA is an agency interlinked issues of climate, environment, health and economy in a holistic way। EHRA एक एजेंसी है जो कि क्लाइमेट, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी को इंटरलिंक करती है होलिस्टिक वे में। करंटली देयर इज नो एनी एजेंसी इन दिस टाइप इन इंडिया, ऑफ दिस टाइप इन इंडिया। इंडिया में इस टाइप की कोई एजेंसी करंट में नहीं है। इंडिया नीड्स एन एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी, EHRA। इंडिया को भी EHRA की नीड है। Why it is a time for India to establish an EHRA? इंडिया को भी EHRA establish क्यों करना चाहिए? नंबर सस्टेनेबल बैलेंस, नंबर एनवायरमेंटल गवर्नेंस, नंबर 3 डेवलप पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, नंबर 4 could be critical in educating citizens on environmental health risk, number 5 would be instrumental to aligning national policies with global standard, number 6 an EHRA could work closely with state and municipal government, नंबर 6 EHRA could also help India to यहाँ पर वेरियस पॉइंट गिवन है। नंबर ऑफ सस्टेनेबल बैलेंस, इंडिया कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, सो सस्टेनेबल बैलेंस बिटवीन क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी इज नेसेसरी। इंडिया में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है बट क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी के बिटवीन एक सस्टेनेबल बैलेंस की नीड है। इसके लिए EHRA एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर एनवायरमेंटल गवर्नेंस, EHRA could lead to more comprehensive and cohesive environmental governance that focus simultaneously on pollution control and multi-risk mitigation, health risk mitigation. Number 3, develop policy instruments. An EHRA can develop policy instruments that will help India to integrate environmental health objectives with economic policy, which would promote sustainable development that benefit the environment, public health, and economy at the same time. Number 4 could be critical in educating citizens on environmental health risk. An EHRA could be critical in educating citizens on environmental health risk and empowering communities to advocate cleaner air, water, and healthier living conditions. Number 5 would be instrumental to aligning national policies with global standard. Uh, नेशनल पॉलिसीज को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करने के लिए EHRA एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्क कर सकता है। इट विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू कलेक्ट एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट एंड हेल्थ चैलेंजेस इंक्लूडिंग एड्रेसिंग ट्रांसबाउंडरी इश्यूज। नंबर 6 NEHRA could work closely with state and municipal governance। स्टेट एंड म्यूनिसिपल गवर्नेंस के साथ EHRA क्लोजली तरीके से वर्क कर सकता है टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज दैट आर क्रूशियल फॉर एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस फॉर द यूनिक नीड्स ऑफ ईच एरिया। नंबर 6 EHRA could also help India to formulate a unified response to all type of pollution
advocate cumulative accountability mechanism, collaborate with international bodies to negotiate and for adopt best practices that simultaneously address health and environment. This lecture is related to NetGrid. NetGrid means National Intelligence Grid. What is NetGrid? NetGrid is a crucial Indian counter-terrorism initiative conceptualized after 2008 Mumbai terror attack. NetGrid इंडिया का एक इम्पोर्टेंट काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव है। 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद इसको इंडिया में कॉन्सेप्चुलाइज किया गया। इट क्रिएट अ सिक्योर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म लिंकिंग गवर्नमेंट डाटाबेस फॉर रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग अमंग सिक्योरिटी एजेंसीज टू फाइट टेररिज्म एंड क्राइम। टेररिज्म एंड क्राइम से फाइट करने के लिए वेरियस एजेंसीज को रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए नेट ग्रिड एक सिक्योर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के तौर पर वर्क करता है। की पॉइंट्स रिलेटेड टू नेट ग्रिड से रिलेटेड की पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पर्पज टू प्रोवाइड रियल टाइम एक्शनेबल इंटेलिजेंस फॉर काउंटर टेररिज्म, फाइनेंशियल क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशंस बाय ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन सिलोज। mechanism integrated data from diverse sources like bank record, telecom data, immigration record, tax detail and travel itineraries. नेटग्रिड डाटा को इंटीग्रेट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरियस सोर्सेज सच एज बैंक रिकॉर्ड, टेलीकॉम डाटा, टैक्स डिटेल, ट्रेवल इटिनरीज, इन सभी से रिलेटेड डाटा को ये कलेक्ट करके इंटीग्रेट करता है। Origin conceptualized in 2009 after the 2008 Mumbai terror attack and operationalized in 2023. 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद 2009 में इसको कंसेप्चुलाइज किया गया, 2023 में इसको ऑपरेशनलाइज किया गया। स्ट्रक्चर एंड अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक अटैच ऑफिस है। डाटा एक्सेस ऑफिसर्स सिक्योर रियल टाइम एक्सेस टू ऑथराइज्ड सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज। Registered development integration with NPR National Population Register for family level demographic data and agreement with NCRB for FIR vehicle data। रिसेंटली नेट ग्रिड को NPR के साथ इंटीग्रेट किया गया सो दैट फैमिली लेवल डेमोग्राफिक डाटा तक एक्सेस को इंश्योर किया जा सके। साथ ही NCRB के साथ भी नेट ग्रिड का कुछ एग्रीमेंट हुआ है, स्पेशली FIR व्हीकल डाटा से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंसर्न रिलेटेड टू नेट ग्रिड से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न रेज हो रहे हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, डाटा इंटीग्रेशन कंसर्न, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, रेज सिग्निफिकेंट कंसर्न रिगार्डिंग डाटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी एंड पोटेंशियल मिसयूज डिस्पाइट बीइंग एग्जम्प्ट फ्रॉम RTI। बिकॉज नेट ग्रिड के कुछ प्रोविजंस को RTI से एग्जम्प्ट किया गया है, यही वजह है कि कुछ डाटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी एंड पोटेंशियल मिसयूज से रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज हुए हैं। डाटा इंटीग्रेशन चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग वास्ट डिस्पैरेट डाटा सेट एंड इंश्योरिंग डाटा एक्यूरेसी। नेट ग्रिड के बिफोर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अगर इसको NPR के साथ लिंक किया जाता है तो वास्ट डिस्पैरेट डाटा सेट को इंटीग्रेट करना एक बिग चैलेंज है। साथ ही डाटा एक्यूरेसी को इंश्योर करना भी इसके बिफोर एक बिग चैलेंज हो सकता है। What is an antimicrobial resistance AMR? Antimicrobial resistance in India. Lecture is important for GS paper 2, GS paper 3. What is antimicrobial resistance AMR? Antimicrobial resistance is a silent pandemic occurring when a microorganism evolve to resist the medicine used to treat them। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक साइलेंट पेंडेमिक है जो कि तब होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्ट इवॉल्व कर लेता है। की ड्राइवर्स ऑफ AMR इन इंडिया में AMR के ड्राइवर्स क्या क्या हैं। India has some of the highest AMR rates globally due to specific socio-economic and clinical factors। इंडिया में स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड क्लिनिकल फैक्टर्स की वजह से हाईएस्ट
AMR रेट है ग्लोबली। क्लिनिकल मिसयूज, ओवर प्रेस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर्स फॉर वायरल इलनेस एंड हाई रिलायंस ऑन एंटीबायोटिक्स। इंडिया में डॉक्टर्स के द्वारा ओवर प्रिस्क्रिप्शंस गिवन किए जाते हैं, स्पेशली वायरल इलनेस के लिए एंड एंटीबायोटिक्स पर इंडिया में पीपल का हाई रिलायंस है। यही वजह है कि इंडिया में AMR रेट बहुत ज़्यादा है। ओवर द काउंटर सेल, इजी एक्सेस टू एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पाइट रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस। इंडिया में एंटीबायोटिक्स का इजी एक्सेस भी AMR रेट को इंक्रीज कर रहा है। लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेटरनरी एंटीबायोटिक्स। ड्रग्स लाइक colistin have been used as a growth promoter in poultry, creating a reservoir for resistance in the food chain. Pharmaceutical pollution, effluent from drug manufacturing hubs release high concentration of active ingredients into local water bodies, creating superbug breeding grounds. Sanitation gap, untreated sewage allow resistant bacteria like NDM1, New Delhi, metallo-beta-lactamase to spread from hospital into public water system. हॉस्पिटल से पब्लिक वाटर सिस्टम में अनट्रीटेड सीवेज पहुंच रहा है। इसकी वजह से रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पीपल के अंदर पहुंच रहे हैं। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू AMR, AMR से रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, an updated 5-year blueprint following the 2017 plan. It focuses on a One Health approach, integrating human, animal, and environmental health surveillance. नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, ये एक अपडेटेड 5-year ब्लूप्रिंट है। 2017 प्लान के बाद ये न्यू प्लान सेट किया गया है। इसका मेन फोकस वन हेल्थ अप्रोच पर है, जिसके अंदर ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ सर्विलेंस को इंटीग्रेट किया गया है। रेड लाइन कैंपेन, a public awareness drive where antibiotic packaging is marked with a vertical red line red line to signal they should not be used without a prescription. रेड लाइन कैंपेन एक पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव है, जिसके थ्रू एंटीबायोटिक पैकेजिंग जो की जाएगी वो वर्टिकल रेड लाइन के थ्रू की जाएगी, जिसका मेन जो सिग्नल होगा वो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन ना टेकिंग करने के लिए ये एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा। शेड्यूल H1 2014, a separate category under the drugs and cosmetic rule that mandated pharmacists to maintain register for sale of a last resort antibiotics. ऑपरेशन अमृत केरला 2024, ये केरला का एक इनिशिएटिव है ऑपरेशन अमृत। A pioneering state-level initiative to state enforce the ban on OTC antibiotic sale through surprise inspections and public reporting. Specific ban, a ban on colistin in animal food industry and a recent ban on hundreds of irrational fixed dose combination in 2024. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ यहाँ पर बैनिंग किया है मेडिसिन का। कोलिस्टिन, जिसका यूज एनिमल फूड इंडस्ट्री में किया जाता था, इसको बैन किया है 2019 में। 2024 में इरेशनल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को यहाँ पर बैन किया है। इन इंडिजिनस इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ नेफिट्रोमाइसिन इन 2024, इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक इन 30 years स्पेसिफिकली फॉर इम्यूनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। ग्लोबल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू AMR, AMR से रिलेटेड ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या है। वन हेल्थ अप्रोच, कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ क्वाड्रिपर्टाइड WHO, FAO, UNEP एंड WOAH। आवारी क्लासिफिकेशन WHO कैटेगरी एंटीबायोटिक इनटू एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व टू गाइड नेशनल यूज। GLAS 2015, the Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System used for standardized data sharing. In this session, we will discuss about Election Commission of India. What is the controversy related to Chief Election Commissioner's appointment? Why news? The Election Commission of India has told the Supreme Court that it has a constitutional duty to ensure that only citizens are enrolled as voters and that no foreigners make it to electoral roll. रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR से रिलेटेड इशू पर सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है
जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि ओनली सिटीजन्स को ही एज अ वोटर एनरोल किया जाए, फॉरेनर्स को आउट किया जाए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज डिफेंडिंग इट्स ongoing special intensive revision of electoral rules which has deleted millions of name of voters. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR से रिलेटेड इशू पर सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर रहा है। SIR जिसके अंडर मिलियंस ऑफ पीपल के नेम वोटर लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। आर्टिकल 324 और of Constitution grant the Election Commission independent control over the preparation of electoral roll. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन करने के लिए इंडिपेंडेंट कंट्रोल गिवन किया गया है। द कंसर्न इज दैट द इलेक्शन कमीशन इज नॉट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली एंड इन अ मैनर दैट बूस्ट कॉन्फिडेंस इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। जो बिग कंसर्न है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर रहा है, साथ ही इलेक्शन से रिलेटेड प्रोसेस को उस मैनर से नहीं परफॉर्म कर रहा है जिससे पीपल का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 इट प्रोविजंस फॉर इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में इंडिया के अंदर इलेक्शंस एंड इलेक्शन कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 324 सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में प्रोविजन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी होगी कि कंट्री में इलेक्शंस को सुपरिंटेंडेंस करे, डायरेक्ट करे। आर्टिकल 325 no person to be eligible for inclusion in or to claim to be included in a special electoral roll on ground of religion, race, caste or sex। आर्टिकल 325 के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल रोल में किसी भी पर्सन को रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पर ना तो इन एलिजिबल किया जाएगा, ना ही उनके क्लेम को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। आर्टिकल 326 इलेक्शंस टू हाउस ऑफ द पीपल एंड टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट टू बी बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। आर्टिकल 326 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि हाउस ऑफ द पीपल के लिए इलेक्शंस एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो भी इलेक्शंस होंगे वो अडल्ट सफरेज के बेस पर होंगे। इट मीन्स लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के लिए जो भी इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे अडल्ट सफरेज के बेस पर ही कराए जाएंगे। आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के लिए जो भी इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन करने के लिए पार्लियामेंट को पावर गिवन की गई है। इट मीन्स इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन ओनली पार्लियामेंट ही कर सकती है। आर्टिकल 328 पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो भी इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन करने का राइट ओनली स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। आर्टिकल 329 बार इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। इलेक्टोरल मैटर पर कोर्ट बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती है। आर्टिकल 329 के अंदर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर गिवन की गई है। यही वजह है कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज्यादातर मैटर में जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करती है। व्हाट इज द मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन का क्या मैंडेट है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। Constitution has vested power to Election Commission, the superintendence, direction and control of entire process for conduct of elections to Parliament, State Legislature and to the office of President and Vice President of India। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया में लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर इलेक्शंस को सुपरिंटेंडेंट करने का, डायरेक्ट करने का, कंट्रोल करने का पावर गिवन किया है। व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
The Election Commission of India is an autonomous constitutional body which is responsible for conduct union and state elections process in India. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि यूनियन एंड स्टेट के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25th जनवरी 1950 सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25th जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश किया गया था. दैट इज व्हाई 25th जनवरी इज नोन एज नेशनल वोटर्स डे. The Secretariat of the Election Commission is in न्यू दिल्ली. इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटेरिएट है वो न्यू दिल्ली में है. इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराता है. Did not conduct elections to the panchayat and municipality in the state. For this, the Constitution of India provide for a separate state election commission. Election Commission of India पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराता है. इसके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Originally, the Election Commission had only one election commissioner, but after the Election Commissioners Amendment at 1989, it was made a multi-member body. Initially, Election Commission of India के अंदर only one election commissioner हुआ करता था. Election Commissioner Amendment Act 1989 के बाद इसको एक multi-member body बना दिया गया. Members in Election Commission of India. टाइम बाय टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर रहे हैं? 1950 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड एज अ सिंगल मेंबर बॉडी विद ओनली अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. 1950 में ईसीआई के अंदर ओनली वन मेंबर हुआ करता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. अक्टूबर 16 1989 टू एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड अंडर द इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 मेकिंग इट 3 मेंबर बॉडी. 16 अक्टूबर 1989 को इलेक्शन कमीशन के अंडर 2 एडिशनल मेंबर यहाँ पर प्रोविजन कर दिए जाते हैं, एस धनोवा एंड वीएस सहगल. अब ये 3 मेंबर बॉडी बन जाता है. जनवरी 1 1990 रिवर्टेड टू सिंगल मेंबर स्टेटस. 1990 में अगेन इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया जाता है. October 1, 1993 restored to a 3-member commission with 2 election commissioners, a structure that had continued. October 1, 1993 में फिर इसे 3-member commission बना दिया जाता है जो कि अभी भी कंटिन्यू है. At the state level, the election commission is headed by chief electoral officer. स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट का जो हेल्प किया जाता है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा किया जाता है. व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर्स. इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए क्या प्रोसीजर है? सर्च कमेटी headed by law minister propose a panel of name of election commissioner to the selection committee. सबसे पहले एक सर्च कमेटी जिसको लॉ मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है सिलेक्शन कमेटी के लिए कुछ एलिजिबल इलेक्शन कमिश्नर्स के नेम यहाँ पर प्रोपोज करती है. 3 member selection committee. As per new law, the election commissioners are selected by a 3-member selection committee comprising of prime minister, a union minister, a leader of opposition. सर्च कमेटी के द्वारा प्रपोज किए गए नेम सिलेक्शन कमेटी के बिफोर फॉरवर्ड किए जाते हैं. सिलेक्शन कमेटी के अंदर 3 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, अ यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन. Why has there been a controversy about the appointment process? Appointment process से related controversy क्या है? In 2023, Parliament passed a new law to appoint election commissioners. 2023 में इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ पास किया जाता है. न्यू लॉ इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर and other election commissioners appointment conditions of service and term of office Act 2023.
2023 में पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया उसका यहाँ पर नेम गिवन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। रिमूवल ऑफ सीजेआई फ्रॉम सिलेक्शन कमेटी, इस कमेटी से सीजेआई को रिमूव कर दिया जाता है। 2023 के बिफोर सीजेआई इस कमेटी के अंदर होता है। रिमूवल ऑफ सीजेआई फ्रॉम सिलेक्शन कमेटी, इन द न्यू लॉ सीजेआई रिमूव्ड फ्रॉम 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी। 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया जाता है। gave little room for dissent. It had objected as committee gave little room for dissent as Prime Minister and the Union Minister are part of government and could rule 2:1 in favor of their candidate. अब जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर यहाँ पर जो स्पेशली सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं यहाँ पर डिसेंट के लिए लिटिल रूम है। इट मीन्स यहाँ पर मेजोरिटी गवर्नमेंट की है, 1 प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी में हो जाता है और 2:1 मेजोरिटी से ये अपने फेवर के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को अपॉइंट कर सकते हैं। रिमूवल प्रोसेस फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस है? ग्राउंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के अगेंस्ट अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव्ड होता है तो ये इसका ग्राउंड हो सकता है रिमूवल का। मैकेनिज्म लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट पास कराना होता है पार्लियामेंट से, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, द प्रेसिडेंट रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर पार्लियामेंट पास द रेजोल्यूशन। पार्लियामेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए अगर रेजोल्यूशन पास कर देता है देन प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू इसको रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल प्रोसेस फॉर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो रिमूवल प्रोसेस है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल प्रोसेस से थोड़ा डिफरेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओनली इम्पीचमेंट के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है, जबकि अदर कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर रिमूव किया जा सकता है। रिकमेंडेशन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर मस्ट रिकमेंड द रिमूवल टू द प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट के बिफोर रिकमेंड करेगा। Presidential order, the president then remove the election commissioner. Autonomy, this system provided election commissioners from arbitrary removal by the government. The procedure for election commissioners has seen debate over its organization. Election commission member can resign anytime or can also be removed before the expiry of their term. Limitations of election commissioners, election commissioners की कुछ limitations set की गई हैं। The Constitution has not specified the term of the member of the election commission. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का टर्म स्पेसिफाई नहीं करता है। हैज नॉट प्रेस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। क्वालिफिकेशन सच एज लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल। हैज नॉट डिबेटेड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को रिटायरमेंट के आफ्टर गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए भी डिबेट नहीं किया गया है। इट मीन्स गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें अपॉइंट कर सकती है। दिस इज PYQ related to this article. So thanks for watching this video.